पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक में उनका माइक म्यूट कर दिया गया। उन्होंने दावा किया उन्हें इस बैठक में बोलने नहीं दिया गया। सीएम बनर्जी के इस दावे में कितना दम है, इसकी सच्चाई भी सामने आ गई है। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक इस दावे में बिल्कुल सच्चाई नहीं है और भ्रामक है। उनके बोलने का समय खत्म हो चुका था और इसे मार्क करने के लिए बेल नहीं बजाई गई थी। अल्फाबेटिकली ममता बनर्जी का नंबर लंच टाइम के बाद आना था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में शामिल किया गया क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी ने राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा उनका माइक्रोफोन म्यूट कर दिया गया और उन्हें 5 मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को अधिक समय दिया गया। उन्होंने कहा मैंने बैठक का बहिष्कार किया। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए। असम, गोवा और छत्तीसगढ़ के सीएम को 10 से 12 मिनट तक बात की। मुझे सिर्फ 5 मिनट बाद ही बोलने से रोक दिया गया। यह अनुचित है। मैंने कहा आपने मुझे क्यों रोका? आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मैं बैठक में भाग ले रही हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए। इसकी बजाय आप अपनी पार्टी अपनी सरकार को ज्यादा गुंजाइश दे रहे हैं। यह न केवल बंगाल का बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है। यह अनुचित है। আমি মাত্র একা গেছি, ওদের উচিত ছিল আমাকে আধ ঘন্টা অ্যালাউ করা। আর আমি এত অনুপযুক্ত লোক নই যে আমি আমার টাইম মেনটেন করব না। বক্তৃতার প্রথমে শুরুতে রাজনাথজি বলেছিলেন 5 to 7 মিনিটস, তা তুমি আমাকে 7 মিনিটসও করতে দিলে না। 7 মিনিটস করতে দিলেও আমি বাদ বাকিটা বলে দিতাম। তুমি তোমার বেলায় 20 মিনিট, তোমাদের বেলায় স্পেশাল প্যাকেজ, স্পেশাল প্রিভিলেজ, আর অন্যদের বেলায় শূন্য। এটা তো কখনো পূর্ণ হতে পারে না। তাই আমি বয়কট করে ঠিক করেছি, বাংলার মানুষের সম্মান আমি মাথা নত করতে দিইনি। বাংলার বঞ্চনা মানছি না, মানব না। এবং অন্যান্য অপোজিশন পার্টিও যারা আছে বিভিন্ন জায়গায় সরকার চালাচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের প্রতিও আমাদের টোটাল সলিডারিটি আছে। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was here attending the Niti Aayog meeting, which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her even as she spoke. Every Chief Minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective Chief Ministers speaking. So did we watch so many Chief Ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. Every Chief Minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting which is being chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by Senior Minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the time of allotted time of the Chief Minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all Chief Ministers, but it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true, and it is unfortunate because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she is reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she is going to continue speaking like some other Chief Ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some Chief Ministers did. But she chose to use that as an excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. ये जो उन्होंने बाहर मीटिंग से बाहर आके जो बोल रहे,
पूरा झूठ ही बोल रहे हैं उन्होंने, क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक ने भी पूरा सामने दे दिया है एविडेंस कि क्या हुआ था वहाँ पे। उनको जैसा उनको जाने का था तो उन्होंने थोड़ा सा जल्दी स्लॉट मांगे थे, उसको स्लॉट भी उनके हिसाब से दिया था, लेकिन तब भी उनको थोड़ा सा मतलब ड्रामाबाजी करने का था। बंगाल पॉलिटिक्स, टीएमसी पॉलिटिक्स फुल ऑफ ड्रामा। तो इनको मतलब सब जैसा मुख्यमंत्री ने सब जो अपने बात रखे हैं उनको टाइम भी मिला था, लेकिन वो टाइम में उन्होंने नहीं बोल के वो चेयर छोड़ के चला गया है। उसको दिखाना है मैं केंद्रीय सरकार से विरोध कर रहा हूँ। एक्चुअली जो फेडरल स्ट्रक्चर का बात ममता बनर्जी ने करते हैं और उसके पहले जो वामफ्रंट के शासन में जो 34 इयर्स था, पूरा ही उन्होंने राजनीति किया है, कभी जनता को अच्छा नहीं किया है। बहुत सारा राज्य है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर में बात करके किसके लिए लेके जाते हैं? जनता के लिए लेके जाते हैं, लेकिन ममता दीदी का कोई इच्छा नहीं है कि जनता के लेके कुछ लेके जाए। तो बार बार जनता ही सबसे बड़ा लूजर होते हैं, उसको राजनीति के लिए आते हैं और एकदम आंख बंद करके पूरा मोदी जी को विरोध करते हैं। अधीर रंजन चौधरी का भी कहना है कि ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रही हैं, पहले से ही स्क्रिप्ट उनको पता थी और उनको पता था ये क्या होना है वहाँ। देखिए, मैं भी बोला कि रेडी कर, कल तो उन्होंने कुछ बाइट दिया था आने से पहले कि अगर ऐसा होगा तो मैं नीति आयोग बैठक से बाहर चले जाऊंगी। तो ऐसे ही स्क्रिप्ट के बराबर उन्होंने मतलब एक्टिंग किया है पूरा, लेकिन वो पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, कैसा उसका एक्शन रहेगा, वो बोल दिया था। तो हम जानते हैं, अधीर जी भी जानते हैं कि ये बंगाल मतलब ममता बंदोपाध्याय मतलब फुल ऑफ ड्रामाबाजी, और इसमें संपर्क नहीं है जनता के लिए कुछ करने का। तो उसको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बने, उसके लिए एक बड़ा लीडर होना चाहिए, विपक्ष का लीडर होना चाहिए। तो आके कुछ ना कुछ थोड़ा सा चिन्ह रख के वो चला गया है कि हम बड़ा लीडर है, लेकिन मीटिंग के लिए तो आया ही नहीं था। एक्चुअली मीटिंग अगर करने का था तो अच्छे से मीटिंग कर लेते। फेडरल स्ट्रक्चर का बात जो करते हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर में उसको बोलने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। I am not privy to what happened over there. I am also in Mumbai the whole day. But I believe Nirmala Sitharaman ji, Prahlad ji have already responded, and the government has said that everybody was given 5 minutes to speak, and it was an auto mode that everybody had to speak in 5 minutes. No special dispensation was given to anybody.